Hello students, welcome to chapter 17 Introduction to Biotechnology. In this part 1 we are going to study about animal tissues, plant tissues and their details. Students, you all are aware that when we started speaking English then we started with ABCD. तो सबसे पहले हमने लेटर्स पढ़ना शुरू किया. Letters they join to form the words, words they join to form the sentences, sentences makes the lesson and lesson finishes in a textbook. In the same way जैसे इंग्लिश में ये सब ऑर्गेनाइजेशन होता है वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. We all know that there are unicellular organisms, there are multicellular organisms. Unicellular organisms have the single cell which perform all the life activities, whereas in multicellular organism there are millions of cells which are present and every group of cell is having the specific task to perform. Now a group of cell which is having the same origin, same structure and same function is called a tissue. So in human beings or in multicellular organisms we have various types of tissues. Here we have two different types of tissues, that is simple tissue and complex tissues. Simple tissues are those tissues which are made up of only one type of cell. For example, epithelial tissues of the animals means सबसे ऊपरमोस्ट outermost layer जो होता है they are the epithelial tissues. Meristematic tissues, these are the same type of cells which are having the same function to perform, whereas complex tissues are those tissues which are made up of more than one type of cell. For example, blood of animals. We all know blood is having RBCs, WBCs, platelets. So it is having more than one type of cell. So in this way, these are the two categories of the tissues, that is simple tissue and complex tissues. So we are going to study in detail about the various types of tissues. Let us go ahead with the animal tissues. So, we all human beings are multicellular animals and these animal tissues are made up of mainly four types of cells: epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nervous tissues. Here in the diagram it is shown how the outermost lining is made up of epithelial tissue, then blood consists of the connective tissue. They are all connected with each other with the help of muscles, so muscular tissues, and our body, brain, all the organs are connected with the nervous tissue. So students, these are the four main types of animal tissues which are present in every multicellular organism. Let us study in detail. Now let us begin with the first type, that is the epithelial tissue. Epithelial, epi means the outermost, cilial means the layer. So from the name only we can get the idea that these are forming the outermost surface. और हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम जो देख रहे हैं वो हमारे epithelial tissues होते हैं. Now depending upon their structure and location and function, we have different types of epithelial tissues. Let us study one by one. First is the squamous epithelial tissue. Now these squamous epithelial tissues, they are very thin, they are small, they are flat cells and they are semi-permeable in nature. As they are semi-permeable, they are very selective in the transport of substances and so they are present in the inner surface of the mouth, in the esophagus and blood vessels, alveoli, where there is a need of selective absorption or transport. The second type of epithelium tissue is the stratified tissue. Strata means the layer one above the other. So these are the cells which are made up of many layers and they are present on the outer layer of the skin. These tissues, they have the important function to prevent the wearing of the organs as well as the protection of inner organs. तो हमें जब भी कुछ लगता है, छिलता है तो स्किन हमें इनर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है.
Then the third type of tissue is the glandular tissue. अब नाम से ही हमें आइडिया आ जाती है कि इनमें कोई ना कोई ग्लैंड्स होंगे. So these are present on the inner layer of the skin and they contain the vesicles which are packed with the secretory material. So they have the secretion of the sweat, oil, or which is known as the sebum or mucus. So in this way these are the glandular tissues. जो हमें पसीना आता है वो इसी टाइप के टिश्यूज से आता है. Then comes the next one, that is the columnar epithelium. अब columnar यानी ही कॉलम जैसे सेल्स होंगे and they are having the upper free surface which bears many folds and these cells are situated at the places of absorption, means they are present on the inner surface of the intestine, they are present in the alimentary canal, and whenever during digestion the secretion of digestive juices is given out from this columnar epithelium. Also when it comes, the digested food, it comes in the intestine, small intestine, large intestine, at that time also absorption of nutrients takes place with the help of this columnar epithelium. Then comes the next one, that is the ciliated epithelium. Ciliated यानी क्या? Cilia, small hair like projections are present on their surface. तो अब ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन वाला एयर के साथ हो सकता है कभी हमारे एयर में इनहेल किया हुआ जो है उसमें एयर के साथ सूट पार्टिकल चला जाएगा, डस्ट पार्टिकल चला जाएगा, इम्प्यूरिटीज चले जाती है. तो ये क्या करता है? इट पुशेस द म्यूकस एंड द एयर फॉरवर्ड एंड कीप द पैसेज फ्री. यानी आपने देखा होगा अगर धूल मिट्टी हमारे नाक में जाती है, डस्ट जाती है, स्मोक जाती है तो हमें छींक आती है. तो छींक क्यों आती है? ताकि ये जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे नेसल कैविटी में चले गए हैं उन्हें वो बाहर निकाल देता है. तो दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस. सो दीज आर द ciliated epithelium tissues. And then comes the last one, that is the columnar epithelium. अब columnar कैसे होंगे? So they are the cuboidal cells, group of the cells, and they are present in the tubules of the kidney and salivary gland. ये क्या काम करते हैं? तो they reabsorb the useful material which is given from the urine. आपने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में कि कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करती है. तो जब ये नेफ्रॉन के पास जाते रहता है तब इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम कॉलमनर एपिथेलियम करता है. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड. सो इट गिव्स द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा. जब हम खाना खाते हैं तो बॉलस फॉर्मेशन करने के लिए हम इस तरह के टिश्यूज़ को यूज़ करते हैं. हमारे ये इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं. So students, you can observe these are the different types of epithelium tissues. So we have studied about squamous, stratified, glandular, columnar, ciliated, cuboidal and epithelium. So you can observe depending upon their function they have the different structures and different locations. Now let us begin with the next one, that is the connective tissue. So connective tissues, they are the tissues which are present all over the body. These tissues, they join the different part of the body and so they have got the name connective tissues. These cells are loosely arranged with the ground substance and this ground substance may be solid, may be liquid or may be water or jelly-like. Let us study these different types of connective tissues. Under this type we have first, that is the blood. We all are familiar, blood is having the most important function of transport of oxygen and nutrients, hormones, waste. These
blood, it is located in the closed circulatory system, arteries, veins, blood vessels, यहाँ ये पूरा ब्लड प्रेजेंट होता है। और ये कैसा होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, इट कंसिस्ट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, एंड दे आर ऑल present in liquid plasma. So this is the first type of connective tissue. Then come the second, that is the lymph. These lymph, it is having the important function of protection of the body from various infection. Where they are present? So they are present all around the cells in the body. सभी जगह पे present होते हैं। और ये तैयार कैसे होते हैं? These are the fluids which oozed out from the capillaries, and it consists of the leukocytes and liquid ground substances. So student, this is the second type, that is the lymph. And then comes the third type, that is the एरोलर टिश्यूज। अब ये एरोलर है, एरोलर नाम से ही आपको आइडिया आ जाएगा कि दे आर हैविंग द they are present between the skin and the muscles, and they are present around the blood vessels. They are different types of cells which are loosely arranged and supported by a jelly like structure or elastic fibers. So they give the support to the internal organ. पूरे इंटरनल ऑर्गन को फिक्स करना है, सपोर्ट करना है, ये इनका फंक्शन होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं एडिपोज टिश्यूज पे। एडिपोज टिश्यूज जो है वो हमें इंसुलेशन देने का काम करता है। दे हैव द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी एज वेल एज दे हैव द कैपेसिटी टू स्टोर फैट्स. They are present below the skin and around the internal organs. अब ये कैसे होते हैं structures? So they are the cells which are fitted with the fat droplets and jelly like ground substances. So student, this is the next type, that is the adipose tissue. उसके बाद आते हैं cartilage. अब ये cartilage जो होता है, let us see how are they present. These cartilage, they are present on the nose, ears, larynx, trachea. ये सॉफ्ट बोन जैसे होते हैं। आप अपने नाक को हाथ लगा के देखिए, आप अपने ईयर्स को हाथ लगा के देखिए, हमें सॉफ्ट लगता है ना। सो दीज सेल्स, दे आर सपोर्टेड बाय द fibrous, flexible and jelly like ground substances. So these are the soft bones. और ये क्या करते हैं? So they lubricate the surface of the bones, give support and shape to the organs. हमारे ears को specific shape मिला है, हमारे nose को specific shape मिला है. So it is all because of the cartilage. Then comes the next connective tissue, that is the bones. आपको पता है कि ये कहाँ होते हैं? तो स्केलेटन फॉर्म में प्रेजेंट है एंड दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी. ये कैसे बने हुए हैं? तो दे आर एम्बेडेड इन द सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. तो हमारे बोन्स कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए हैं एंड दे आर हैविंग द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन to the different organs and also they help in the movement. बिना बोन्स के हम मूवमेंट कर ही नहीं सकते हैं. So they are having the important role. Then comes the last, that is tendons and ligaments. आप इन डायग्राम में देखोगे जो टेंडन्स होते हैं वो मसल और बोन्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं. तो लिगामेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के बोन्स को ज्वाइन करते हैं. तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो नीचे दिखाए हैं दो बोन्स का ज्वाइनिंग, इन्हें हम लिगामेंट कहते हैं. और यहाँ आपको रेड कलर के मसल्स के साथ में बोन्स दिखाए हैं. सो दीज आर द टेंडन्स. दे आर फाइब्रस, दे आर लॉन्ग, दे आर लेस इलास्टिक एंड they are all present at the joint. So these are different types of connective tissues which are present and which are responsible for various important functions. So students, we have studied about different types of connective tissues consisting of blood, lymph,
areolar tissue, adipose tissue, cartilage, bones, tendons and ligaments. So these are the different types of second type of animal tissues. Then comes the next type, that is the muscular tissue. अब आप नाम से ही इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसे सेल्स होंगे। तो जो मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के, ये सब मसल फाइबर्स के बने हुए रहते हैं और हम जो भी हमारे बोन से अटैच्ड होते हैं ये मसल फाइबर्स, मस्कुलर टिश्यूज़, और ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने हुए हैं और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जो अल्टीमेटली हमारे मस्कुलर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ दिस मस्कुलर टिश्यूज आर अगेन मेड अप ऑफ 3 टाइप्स. Let us study one by one. So first is the striated muscular tissue. अब ये striations हमें क्यों दिखते हैं? It is because of the dark and the light bands which are present alternately and they are attached to the bones. Also, the first type, that is the striated muscular tissues, they are having the long cylindrical and multinucleated cells which are not having any branches. The special feature of this tissue is they are also known as skeletal muscles because they are attached to the bones. ये सारे बोन से अटैच्ड होते हैं और इन्हें हम voluntary muscles भी कहते हैं because they can be moved as per our own will. हमें चलना है, बैठना है, उठना है, दौड़ना है, तब हम अपने विल पावर के अकॉर्डिंगली इनको कंट्रोल कर सकते हैं. So these are the first type of muscular tissue, that is striated muscles. Then comes the second type. Second type को हम क्या कहते हैं? Non-striated muscles. So these non-striated muscle cells, they are short, they are spindle shaped, they are uninucleated and they do not have any branches. Now there is no dark or light bands which is present on this cell, and these movements, they are also attached to the bones but their movement are not according to our will, means इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. सो दे आर नोन एज इनवॉलेंटरी मसल्स. सो अदर नेम ऑफ नॉन स्ट्राइटेड मसल्स इज नोन एज इनवॉलेंटरी मसल्स. ये क्या करते हैं? तो ये मूवमेंट ऑफ आई लीड्स करते हैं. पैसेज ऑफ फूड जब एलिमेंट्री कैनल से पास होता है उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल. So these are the second type of muscular tissues. Then come the third type, that is the cardiac muscles. अब आप नाम से ही गेस कर सकते हैं कि ये जो मसल्स है ये हमारे कार्डियक मीन्स हमारे हार्ट से अटैच्ड होते हैं. दे आर ऑल्सो सिलेंड्रिकल, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डार्क और लाइट बैंड्स दिख रहे हैं और ये सारे मसल्स जो है ये इन हार्ट से अटैच्ड होते हैं एंड सो देयर मूवमेंट इज अगेन इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल. सो दे आर known as involuntary muscles. They contract and relax rhythmically means हार्ट की बीट्स के साथ में ही वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं. सो स्टूडेंट्स यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे जो स्ट्राइटेड मसल्स है उन्हें हम स्केलेटल या वॉलेंटरी मसल कहते हैं. नॉन स्ट्राइटेड मसल है उन्हें हम इनवॉलेंटरी कहते हैं और कार्डियक मसल्स दे आर अगेन इनवॉलेंटरी which are related with the heart. So in this way these are the different types of muscular tissues which are present. उसके बाद आता है fourth type of animal tissue which is known as nerve cell या हम नर्वस टिश्यू कहते हैं. आप बहुत बार सिंगर को उसके आवाज़ से पहचान लेते हो या फिर मम्मी घर पे अगर कुछ टेस्टी फूड आपका बना रही है तो आप जब स्मेल से ही उसे गेस कर सकते हो. कोई बहुत दिन बाद मिले हैं तो हम उसे अपने मेमोरी को स्ट्रेस देके याद करके पहचान सकते हैं. सो ये सब हमें कहाँ से मिलता है? दीज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ऑफ टच,
sound, odor, color. It is possible only because of these nervous tissues. So we have studied in the last chapter also about the structure. So they are specially made and they are having the capacity to produce electrical impulses. आपने देखा कि ये नर्व सेल जो होता है ये ब्रांच लाइक डेंड्राइट्स का बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस और सेल बॉडी है, लॉन्ग माइलियन शीट है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, और यहाँ टर्मिनल एंड पे अगेन देयर आर ब्रांचेस ऑफ डेंड्राइट्स। सो इस तरह से ये इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस सबसे पहले डेंड्राइट्स पे आएगी, डेंड्राइट्स से पहुँचती है ये न्यूक्लियस में, यहाँ से वो खुद के मैसेजेस बनाता है, एक्सॉन से पास होता है और फिर टर्मिनल एक्सॉन से ये दूसरे नर्व सेल के साथ में कनेक्ट होता है और वो मैसेज पास ऑन होता है। इस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारी पूरी बॉडी से कनेक्टेड होते हैं और मैसेजेस पास ऑन होते हैं। दिस नर्वस टिश्यूज दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, spinal cord, and there is a network of the nerves which is spread all through the body. अब हमने बहुत बार देखा है कि एनिमल्स में एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई ऑकर ड्यू टू द इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस टिश्यू एंड द मस्क्यूलर टिश्यू। तो वहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होता है, तो दोनों टिश्यूज जो है वो काम करती है। So student, these are specially the 4 types of animal tissues. हमने सबसे पहले पढ़ा एपिथेलियम टिश्यू, फिर पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू, फिर पढ़ा मस्क्यूलर टिश्यू और लास्ट में पढ़ा एनिमल टिश्यू, नर्वस टिश्यू. So these are the 4 types of animal tissues which are ultimately responsible for the functioning of different systems, different organs. In this way our body coordinates and our body works. Now let us study about the प्लांट टिश्यूज़. अब बेसिक डिफरेंस जो एनिमल और प्लांट्स में होता है कि एनिमल्स दे हैव द मूवमेंट, इधर से उधर घूम सकते हैं, हमारी पूरी बॉडी बढ़ती है, हम छोटे से बेबी जैसे बर्थ हुआ है तब हम छोटे से बच्चे होते हैं, धीरे धीरे आप बढ़ते हो, हाइट, हेल्थ, वेट सब बढ़ता है, मीन्स देयर इज अ ओवरऑल ग्रोथ ऑल ओवर द बॉडी. whereas in plants you can see the growth of the plant it occurs only at the specific part of the body. उनका जो रूट होता है, उनका जो स्टेम होता है, वहीं पे ये ग्रोथ होते हैं. सो देयर आर स्पेशल टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. यहाँ आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दिखाई हुई है कि यहाँ पे हमने एक प्लांट ओनियन लिया है और उस ओनियन को हमने एक कांच के ग्लास में पानी में डिप करके रख दिया है. उसका अगर हम रोज़ लेंथ रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि उसकी जो रूट्स है वो बढ़ती है. फिर 4th डे के बाद में अगर हमने एक जो बी फ्लास्क है, यहाँ के फ्लास्क के ओनियन के कुछ रूट्स जो है उसको कट कर देते हैं और फिर हम मेजर करते हैं फ्लास्क ए और बी के ग्रोथ के रूट्स के ग्रोथ को. तो आप देखोगे कि जिस फ्लास्क का टिप हमने कट कर दिया था बी फ्लास्क का, यहाँ पे आपको ग्रोथ कम दिखेगी एज कंपेयर टू दैट इन द ए. नो व्हाई दिस हैपन? बिकॉज हियर एट द टिप ऑफ द रूट्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल. कंटिन्यूसली सेल डिवीजन यहाँ होते रहता है. सो यू कैन सी दैट प्लांट टिश्यूज दे आर ऑफ 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहेगा, सेल डिवाइड होते रहेंगे और एक बार ये डिवीजन कंटिन्यू हो गया है, स्टॉप हो गया है, फिर वो सेल जिस पार्ट का है वहाँ का वो परमानेंट टिश्यू हो जाता है और वहाँ के स्पेसिफिक फंक्शंस वो करने लगता है. सो लेट अस स्टडी these 2 types of tissues in detail. Now here you can see
that the plant tissues they are meristematic tissues. अब ये meristematic tissues जो होते हैं they are present in the specific parts and their growth occurs in those parts only. ये जो cells होते हैं meristematic tissues के, इनके characters होते हैं कि उनका cytoplasm thick होगा, उनका न्यूक्लियस बिल्कुल कॉन्स्पिक्यूअस प्रोमिनेंट दिखता है और थिन सेल वॉल होगा. दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, उनका वैक्यूल यूजुअली एब्सेंट होता है, हाईली एक्टिव होते हैं और हाईली एक्टिव है इसीलिए ये प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द लोकेशन दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे आर ऑफ 3 टाइप्स. आपको यहाँ पे लोकेशन और फंक्शन दिखाया हुआ है. तो सबसे पहला देखते हैं अपाइकल मेरिस्टेम. अब ये अपाइकल मेरिस्टेम्स कौन से होते हैं? So they are present at the tip of the root and the stem and they are responsible for the increase in the length of the root and stem. अब ये टिप पे होते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, इसीलिए प्लांट्स के रूट्स ज़मीन के नीचे जाते हैं. हमने मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा है, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म. तो दीज मूवमेंट्स आर पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस अपाइकल मेरिस्टेम. उसके बाद जो सेकेंड दिखाया हुआ है दे आर द इंटरकैलरी मेरिस्टेम. दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पिटियोल ऑफ लीव्स एंड आर ब्रांचेस. तो आप देखोगे जब भी यहाँ पे कोई फूल निकलते हैं या लीफ निकलते हैं तो यहाँ पे जो ब्रांचेस तैयार हो रही है दे आर ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस एंड फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. Then comes the third one, that is the lateral meristem. Lateral means what? It is having the function of increasing the diameter of the root and stem of the plant. आप देखोगे जब पौधा होता है तो छोटा सा होता है, धीरे 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 वो बढ़ते जाता है, उसका गर्थ, उसका डायमीटर बढ़ते जाता है. दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस लैटरल मेरिस्टेम. सो लैटरल मेरिस्टेम जो है ये रूट्स और स्टेम्स में डायमीटर बढ़ाने का काम करती है. सो दीज आर द cells which are responsible for the continuous division in the plants. अब एक बार ये plants के सेल डिवाइड हो गए हैं, उनका डिवीजन स्टॉप हो गया है, देन दे बिकम द परमानेंट टिश्यूज. अब ये परमानेंट टिश्यूज भी दो तरह के होते हैं प्लांट्स में और इन्हें कहा जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से रहेंगे? जो सेम टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए हैं और स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. और कॉम्प्लेक्स मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मोर देन one type of cell. Now let us study these two cells in detail. So here the first type, that is simple permanent tissue, is shown here. The first it shows the parenchyma. आपने देखा है कि parenchyma जो है ये living cells होते हैं और ये पूरे thin wall रहता है इनमें और intercellular spaces इनमें भरी हुई रहती है. They are present in the root, stem, leaf, flowers and seeds also. अब ये क्या करते हैं? ये सपोर्ट देते हैं प्लांट को, स्टोर करते हैं फूड और यहाँ पे वैकेंट स्पेसेस होते हैं. अगर ये वैकेंट स्पेसेस में एयर है तो वो पैरेन्काइमा को कहा जाता है एरेन्काइमा. अगर इन यहाँ पे सेल्स के अंदर में अगर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है देन दे आर नोन एज क्लोरेन्काइमा. सो हियर क्लोरोप्लास्ट इज शोन हियर. सो क्लोरोप्लास्ट है यानी उसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरेन्काइमा. सो दिस आर द फर्स्ट टाइप. उसके बाद जो सेकेंड टाइप आपको दिखाया है उसे कहा जाता है कोलेन्काइमा. ये कोलेन्काइमा किस तरह के होते हैं? तो ये कोलेन्काइमा के जो ये लेंथ जो होती है सेल की ये इलोंगेटेड होती है, इनके थिक वॉल्ड होते हैं और इस पे सेल्यूलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, इसीलिए ये टफ हो जाते हैं, थिक होते हैं. अब ये टफ होने की वजह से क्या करते हैं? दे गिव सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इनका लोकेशन कहाँ कहाँ है? तो दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीफ,
दे आर लोकेटेड एट द ब्रांचेस एंड द स्टेम। इस तरह से ये है सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। देन कम्स द थर्ड वन विच इज नोन एज स्क्लेरेनकाइमा। अब ये स्क्लेरेनकाइमा क्या रहेगा? दीज आर द डेड सेल। आप देखोगे पैरेन्काइमा भी लिविंग है, कोलेनकाइमा भी लिविंग है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा आर डेड सेल। वाई दे आर डेड? बिकॉज ऑफ द दे आर वेरी थिक, दे आर टैपरिंग एंड्स। इनके एंड्स जो है वो इस तरह से टैपरिंग है और इनके सेल वॉल्स में लिग्निन होता है जो इन्हें टफनेस, हार्डनेस देने का काम करता है। सो इट इज हैविंग द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गिविंग द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट. So sclerenchyma, and they are also responsible for the hardness of stem, veins of the leaves, hard coats of the seeds एंड आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ कोकोनट। सबने नारियल देखा है ऊपर से कितना हार्ड और टफ होता है, तो ये जो ऊपर का लेयर होता है ये स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ होता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सो ये जब यहाँ पे सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है उसके बाद में ये इस तरह के सेल्स काम करते हैं। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इनमें लिविंग भी है और डेड सेल भी है और इनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो आवर वैस्कुलर बंडल, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबको पता है जाइलम क्या करता है? वाटर, मिनरल्स और जो इम्पोर्टेंट ये होते हैं सॉल्ट्स होते हैं उनको अपवर्ड डायरेक्शन में लाने का काम करता है। सो इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द ट्रकीड्स, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द वेसल्स एंड जाइलम फाइबर। इसमें जो जाइलम फाइबर होता है वो डेड सेल होता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग है। तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू लिविंग और नॉन लिविंग या लिविंग एंड डेड दोनों तरह के सेल्स के बने हुए हैं। वेयर एज द सेकेंड टाइप ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यू इज द पैरेन्काइम, फ्लोएम है। तो फ्लोएम क्या करता है? हमें पता है कि फ्लोएम का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जो शुगर बन गया है, जो अमाइनो एसिड्स हो गया है, उन्हें कंडक्ट करने का काम करता है। उसको लीव से वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ द सीव ट्यूब्स। यहाँ पे सीव ट्यूब्स होते हैं जो फूड सप्लाई करते हैं, कंपेनियन सेल सपोर्ट करते हैं। इनमें से फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है और फ्लोएम फाइबर जो टफनेस देने का काम करता है वो नॉन लिविंग या डेड होता है। एंड सो दे आर अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ द लिविंग एंड द डेड सेल, सो दे आर हियर एज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सो स्टूडेंट्स, these are different types of plant tissues। हमने प्लांट टिश्यूज में देखा कि परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हमने 3 टाइप्स देखे, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। और फिर हमने परमानेंट के 2 टाइप्स देखे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल के हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा देखा, तो कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम एंड फ्लोएम देखा। So I hope you have understood the concept of tissue and now you are aware with the different types of plants and animal tissues. Thank you very much.